Good morning, dear students of class 10th. My name is Deepak Vasist. I am your science teacher, and today I am going to start the study of physics, class 10th. Class 10th science, and we will start from physics. Physics, the sound you are listening through internet, your mobile phone, television or radio set is based on some physical activities. There is some physics in this phenomenon. You are able to watch me, I am able to record this video due to some kind of physics in it. We are able to see the objects by light, and that will we study in further chapters. So not going in detail, we will first define the physics. What is physics? So students, physics is the science of daily life. In day-to-day life, whatever we see, whatever we listen, whatever we experience is anywhere related to the physics. So in class 10th, mainly we have to study about electricity and light in physics. There are two main conceptual chapters which we will further carry in 11th and 12th. They are electricity and light. In electricity we have two chapters. The two chapters are named electric field and electric charge. Electric field and electric charge, along with electric current, and second one is magnetic effect of electric current. Second one is magnetic effect of electric currents. So students, we will start from here. Electric field and electric charges, first chapter. And in light we will study about reflection and refraction. Reflection and refraction. So these are four chapters. Human eye and colorful world has been removed by CBSE in the syllabus deduction. जो लाइट में ह्यूमन आइड एंड कलरफुल वर्ल्ड नाम का चैप्टर था, हटा दिया गया है. ठीक है, तो वो स्टडी नहीं करेंगे. तो शुरू करते हैं चार्ज के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर. ये इंट्रोडक्शन आपको जरूर समझ में आ गया होगा. पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं. एक अपनी जो नोटबुक आपको बनानी है उसमें ये चीज़ एज इट इज़ ऐसे ही लिखती जानी है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको क्या क्या बताया जा चुका है. क्योंकि बड़े सिंपली आप लोग कह दोगे कि हमें शायद कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन ये बात आपके काम की नहीं है. आपके काम की बात ये है कि आप कहाँ से और कैसे पढ़ पाते हैं. स्कूल अरेंजमेंट कर रहा है, हम टीचर सब लगे हुए हैं. आप लोग भी थोड़ा ये दिखाइए कि आपको जरूरत है. चार्ज. So as in kinematics or in class 9th we have one physical quantity named mass. The same role in electricity is played by charge. The charge plays the same role as mass in kinematics. चार्ज के टाइप सुने होंगे आपने. There are two kind of charges, positive charge and negative charge. Positive charge and negative charge. So how we will be able to decide the given charge is positive or negative? So first we will define the charge. Charge is represented by Q, small q or capital Q, and charge is defined as number of electrons. Q is equal to n into E, where n is 1 2 3 4 5 डॉट 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 नंबर है
and small e is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ये फिक्स है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल चार्ज क्यू कितना होगा। सो नाउ वी विल डिफाइन चार्ज इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। सो डिफिशियंसी एंड excess of electrons shows negative charge and deficiency of electrons shows positive charge। समझते हैं कैसे? मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी देन चार्ज इज पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन अगर अधिकता में है, एक्सेस में है, देन चार्ज इज नेगेटिव। तो आपने देखा होगा Na सोडियम 1123, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने पे Na प्लस आयन बन जाता है ऑन रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na, सोडियम आयन Na प्लस। तो प्लस आयन कब आया? पॉजिटिव चार्ज इस पे कब आया? जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गया। तो देखिए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटिंग पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और Cl माइनस क्लोरीन 17.35.5, इसका जब आयन बनता है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है Cl माइनस NaCl, पढ़ा होगा आप लोगों ने अच्छे से। तो यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, देन इट इज नेगेटिव चार्ज, इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अधिकता है इलेक्ट्रॉनों की, नेगेटिव चार्ज है, और कमी है तो पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको अच्छे से याद रहेगा। जल्दी से इनकी प्रॉपर्टीज और जान लेते हैं। ये टाइप हो गए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दूसरा आप लोग एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, पॉइंट बना के लिख लीजिए, ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट लिखते जाइए सुन के, ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस को पता होगा आपको, मैग्नेट में भी होता है। एंड सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, सुन के लिख लीजिए, सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। एंड एवरीथिंग इज कंसिडर्ड टू बी मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। हर एक चीज को इलेक्ट्रॉन से बना माना जाता है। तो प्रैक्टिकली हम लोग किसी चीज को छूते ही नहीं हैं। मेरी ये दोनों उंगलियां इलेक्ट्रॉन से बनी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ये रिपेल कर रहा है, बस टच है, स्किन का सेंस है, लेकिन ये कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो ये ज़्यादा डीप बात हो गई, आपको इतना याद रखना है। अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस विल रिपेल। एंड लास्ट वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑलवेज रिमेन्स क्वांटाइज। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, लिख लीजिए, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। और पैकेट आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि 3.5 बिस्कुट का पैकेट है या 2.5 बिस्कुट का पैकेट है। देखा है क्या? नहीं देखा होगा, क्योंकि पैकेट में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंटीग्रल होते हैं। या तो एक होगा पैकेट में मोबाइल, या 2 होंगे चार्जर, या 3 होंगे बिस्कुट, या 100 उसमें रखी होंगी चौक। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 3.5 या 2.5 है। तो क्वांटा का मतलब पैकेट। तो यही इलेक्ट्रॉन के केस में भी है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड, इलेक्ट्रॉन को आप बांट नहीं सकते हो। देन किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो चार्ज होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, 3, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज के बारे में कंप्लीट जानकारी है, जिससे आप न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से लगा पाएंगे। आप इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे का आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक यू। इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड 21 जुलाई 2020। ठीक है, स्टार्ट कवरिंग द टॉपिक्स। टाइम इज नॉट रिमेनिंग
टू मच। एग्ज़ाम होंगे, रिजल्ट भी आएगा जैसा इस साल आया था, तो बाद में आपका कोई बहाना काम में नहीं आएगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं केवल वही तब खुश होंगे, ठीक है। तो अपनी गिनती पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में रखिए। थैंक यू फॉर नाउ।